یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہیں؟ سنہری متن: امثال: صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ جوابی مطالعہ: زبور: خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ بلند ہوا۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ درسی واز بائبل میں سے زبور: اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے سب کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ سلاطین: سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے منبع کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا۔ جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں، جب تو ان کو دکھ دے، تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث میں دیا ہے مینہ برسانا۔ لوقا: یہاں ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ،
نہ کہ सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पीने नहीं ले जाता? और वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। यूहन्ना, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा, यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सच्ची रूहानियत के पुरस्कून मजबूत धारे, जिनके इजहार सेहत, पाकीज़गी और खुदकार कुर्बानी हैं, इन्हें उस वक्त तक इंसानी तजर्बे को गहरा करना चाहिए जब तक मादी वजूदियत के अकायद वाज़ेह मुसल्लत होते हुए दिखाई नहीं देते, और गुनाह, बीमारी और मौत रूहानी अलूहियत के साइंसी इजहार और खुदा के रूहानी कामिल इंसान को जगह फराहम नहीं करते। हमें ख्यालात में कामिल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम उन्हें कभी अजीम और शरीफाना जिंदगियों में नक्श नहीं कर सकते। हमारे अंदर बेगर्जी, अच्छाई, रहम, अदल, सेहत, पाकीज़गी, मोहब्बत आसमान की बादशाही को सल्तनत करने दें, और गुनाह, बीमारी और मौत तल्फ होने तक कम होते जाएंगे। इल्मुल हयात और हिफ्ज़ाने सेहत के फ़रोग़ के वसीला सेहतमंदी को बहाल करने में नाकाम होना मायूस बातल अक्सर उन्हें तर्क कर देता है, और अपनी इंतहा में और सिर्फ बतौर आखिरी क़यामगाह वो खुदा की तरफ लौट जाता है। अद्वियात, हवा और तजर्बे पर यकीन की निस्बत बातल का इलाही अक्ल पर यकीन कम होता है, वगरना वो पहले अक्ल से बहाल हो जाता। ज़्यादातर तिब्बी निज़ामों की जानिब से क़ुव्वत का तवाज़न मादे की बदौलत तस्लीम किया जाता है, लेकिन जब अक्ल कम अज़ कम अपनी महारत का गुनाह, बीमारी और मौत पर दावा करती है, तभी इंसान हमआहंग और लाफानी पाया जाता है। इंसान की इनफरादियत कम ठोस नहीं है क्योंकि ये रूहानी है, और क्योंकि उसकी ज़िंदगी मादे के रहमो करम पर नहीं है। खुद की रूहानियत इनफरादियत का इदराक इंसान को मज़ीद हकीकी सच्चाई में मज़ीद मजबूत बनाता है, और उसे गुनाह, बीमारी और मौत को फतह करने के काबिल बनाता है। कब्र में से जी उठने के बाद हमारे खुदावंद और मालिक ने खुद को अपने शागिर्दों पर हूबहू उसी यीशु के तौर पर पेश किया जिसे वो कलवरी के सानिया से पहले प्यार करते थे।
यसू ने मादियत की नाअहलियत को इसके साथ साथ रूह की लामहदूद काबिलियत को ज़ाहिर किया। यूं गलती करने वाले इंसानी फहम को खुद की सजाओं से भागने और इलाही साइंस में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने में मदद की। मुनासिब हदायत की गई वजह जिस्मानी हिस्स की गलती को सुधारने का काम करती है, लेकिन जब तक इंसान की अबदी हम-आहंगी की साइंसी हस्ती की मुतसिल हकीकत के ज़रिए उनकी फ़रेब नज़री को ख़त्म नहीं करती, गुनाह, बीमारी और मौत हकीकी ही नज़र आते रहेंगे, जैसा कि सोते हुए ख्वाबों के तजर्बात हकीकी दिखाई देते हैं। यसू ने कहा, यूहन्ना 8 बाब 51 आयत, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को न देखेगा। ये बयान रूहानी ज़िंदगी तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें वजूदियत का करिश्मा भी शामिल है। यसू ने इसका इजहार मरने वाले को शिफा देते और मुर्दा को जिंदा करते हुए किया। फ़ानी अक्ल को गलती से दूर होना चाहिए, खुद को इसके कामों से अलग रखना चाहिए, तो लाफानी जवां मर्दी मिसाली मसीह गायब हो जाएगा। मादे की बजाय रूह पर इन्हसार करते हुए ईमान को अपनी हदूद को वसी करना और अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। जब इंसान मौत पर अपने यकीन को तर्क कर देता है, वो मजीद तेजी से खुदा, जिंदगी और मोहब्बत की जानब बढ़ेगा। बीमारी और मौत पर यकीनन गुनाह पर यकीन की मानद जिंदगी और सेहतमंदी के सच्चे फहम को बंद करने की जानब रजू करता है। इलाही साइंस में मादी इंसान खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया जाता है। 5 मादी जिस्मानी हवास रूह की पहचान नहीं कर सकते, वो उसकी हजूरी में नहीं आ सकते और उन्हें ख्वाबों की दुनिया में ही रहना पड़ता है, जब तक बशर इस इदराक तक नहीं पहुंचते कि मादी जिंदगी अपने तमाम तर गुनाह, बीमारी और मौत के साथ एक फरेब नजरी है। इलाही साइंस जिसके खिलाफ एक खात्मे के महाज़ में शामिल है। वजूदियत की बड़ी हकीकतें गलती के बाइस कभी खारिज नहीं की जाती। एक बड़े नमूने की मानद रूह को जिस्मानी हवास की झूठी गवाहियों पर हुकूमत करने और बीमारी और फानियत पर दावों को जताने के लिए आज़ाद करते हुए शिफा देने वाले को बीमारी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे उस पर इख्तियार हासिल है। यही असूल गुनाह और बीमारी को शिफा देता है। जब इलाही साइंस नफसानी सोच के ईमान पर और इस ईमान पर काबू पा लेती है कि खुदा पर यकीन गुनाह और मादी शिफाई तरीक़ों पर यकीन को नेस्त कर देता है, तो गुनाह, बीमारी और मौत गायब हो जाएंगे। अजीज़ क़ारीन, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको आपके इलाही हकूक़ के फ़हम, आपकी आसमानी अता करदा हम-आहंगी की जानब रहनुमाई दे रहा हूँ, ताकि जब आप ये पढ़ें तो आप देखें कि ऐसी कोई वजह गलती करने के अलावा कोई मादी हिस्स जिसमें कोई क़ुव्वत नहीं है, इस काबिल नहीं है कि आपको बीमार या गुनाहगार बना सके। और मुझे उम्मीद है कि आप इस झूठी सोच पर फतह पा रहे हैं। नामनिहाद मादी हिस्स के झूठ को जानते हुए आप गुनाह, बीमारी और मौत के अकीदे पर फतह पाने वाले अपने इस्तेहकाक का दावा कर सकते हैं। मुकाशफा 21 बाब 1 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। इंकशाफ करने वाला अभी मौत कहलाने वाले इंसानी तजर्बे के तब्दील शुदा मरहले में से अभी नहीं गुजरा था, लेकिन उसने पहले ही नए आसमान और नई ज़मीन को देख लिया है, क्योंकि आसमान और ज़मीन से मुतल्लिक़ मुक़द्दस यूहन्ना की जिस्मानी हिस्स गायब हो चुकी थी और इस झूठी हिस्स की जगह रूहानी हिस्स आ गई थी, जो ऐसी नफसी हालत थी जिसके वसीला वो नए आसमान और नई ज़मीन को देख सकता था, जिसमें रूहानी ख्याल और हकीकत का शऊर शामिल है। ये कलाम का इख्तियार ये नतीजा अक्स करने के लिए था कि हस्ती की ऐसी शनाख्त इस वजूदियत की मौजूदा हालत में इंसान के लिए मुमकिन है और रही थी कि हम मौत, दुख और दर्द के आराम से यहाँ और अभी बाखबर हो सकते हैं। यह कतई क्रिश्चियन साइंस की चाशनी है। बर्दाश्त करने वाले अजीज़ों, हौसला करें, क्योंकि हस्ती की ये हकीकत यकीनन कभी न कभी किसी न किसी सूरत में सामने आएगी। कोई दर्द नहीं होगा और सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे। जब आप ये पढ़ें तो यसू के इन अल्फाज को याद रखें, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसीलिए ये रूहानी शाऊर मौजूदा इम्कान है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ।
इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि वो हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़ामतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।